Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department. We are going to start a video lecture series on technicals of transportation engineering subject. In this series, we perform all the experiment of transportation engineering subject as per syllabus of Gujarat Technological University. List of experiments by Gujarat Technological University for this subject are listed here, and we can see various subjects and various practical like aggregate crushing value, determination of aggregate impact value, Los Angeles abrasion value, shape test on aggregate, California bearing ratio value, viscosity of bitumen, softening point of bitumen, ductility of the bitumen, flash point and fire point of bitumen, determination of bitumen content, stripping value of road aggregate, and demonstration of binder content by Marshall method or bituminous mix design. Here we can also see the list of various equipment for perform all these experiments and this suggestion by the Gujarat Technological University as per syllabus. And this major equipment like aggregate crushing value test apparatus, aggregate impact value test apparatus, Los Angeles test apparatus, Flakinex and elongation index gauge, California bearing ratio test, kinematic viscosity meter test apparatus, ring and bolt test apparatus, ductility test apparatus, and flash and fire test apparatus. Also, here we can see the major equipment like Marshall test apparatus. So, all these equipment are useful for testing on highway material like aggregate, soil, and bitumen. So friend, before the start of video lecture on practical, we can also see the component of highway payment. So आज हम देखते हैं पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ हाईवे पेमेंट क्या है, कौन कौन से मटेरियल है जिस पर हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारा हाईवे पेमेंट है उसकी दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट फील होती है। ठीक है, सबसे नीचे जो हमारा सॉइल का लेयर होता है उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं और वो एग्जिस्टिंग सॉइल होती है, और उसके ऊपर सब लेयर्स होते हैं जिसको हम पेमेंट लेयर बोलते हैं, जो फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट स्ट्रक्चर के लिए होता है। ठीक है, तो इन सब कंपोनेंट के लिए हम अलग अलग मटेरियल का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम हाईवे के पेमेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होगा वो है सेपरेट सॉइल जो सबसे नीचे लेयर में आएगी, वो है दूसरा है एग्रीगेट और स्टोन एग्रीगेट, तीसरा है बिटुमिनस जो बिटुमिनस सरफेस जो बियरिंग कोट सरफेस पे जो टॉप लेयर पे आएगा, और चौथा है बिटुमिनस मिक्स जिसको हम अलग अलग बेस कोट्स, सब बेस कोट्स और बियरिंग कोट्स में यूज करेंगे। सो हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 हाईवे मटेरियल, जितने भी एक्सपेरिमेंट है ये इस चैप्टर को बिलोंग करते हैं, और जितने भी एक्सपेरिमेंट है ये 4 मटेरियल पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, so friend, as per our GTU guidelines and syllabus, let's start the experiment number 1, determination of aggregates crushing value, Indian Standard 2386 Part 4। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अभी हम जिस लेक्चर और जिस प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ये प्रैक्टिकल एग्रीगेट के लिए है जो हमारा हाईवे मटेरियल है, इंपॉर्टेंट हाईवे मटेरियल जो बेस कोर्स और सब बेस कोर्स में यूज हो रहा है। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव है ये एक्सपेरिमेंट का वो है टू डिटरमाइन द क्रशिंग वैल्यू ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ एग्रीगेट with the help of the compression testing machine। क्या है ऑब्जेक्टिव कि एग्रीगेट जो हमारा सैंपल हम लेंगे उसकी क्रशिंग वैल्यू फाइंड करना, उसकी क्रशिंग वैल्यू डिटरमाइन करना। एपर्टस इस प्रैक्टिकल के लिए जो यूज होने वाले है वो है कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन,
यहाँ पे दिया गया है कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन जिसकी कैपेबिलिटी है अप्लाइंग लोड 40-14 नट टन्स के लिए। ठीक है, जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ लोडिंग जो है उसका है 4 टन पर मिनट। इतने रेट ऑफ लोडिंग पे ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है जिसका नाम है कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन। ठीक है, और यूज होने वाले हैं उसमें है स्टील सिलेंडर विथ ओपोनेंट। एक स्टील सिलेंडर होगा, ओपोनेंट जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। सर्कुलर बेस प्लेट, ये सर्कुलर बेस प्लेट है। प्लंजर का यूज करेंगे, ये प्लंजर है। फिर है स्टील टैंपिंग रोड, ये जो रोड है वो स्टील टैंपिंग रोड है। और उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ कैपेसिटी 3 kg विथ एक्यूरेसी अप टू 1 ग्राम। जो वेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे थ्रू हम वेट को मेजर करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट का वेट को मेजर करेंगे, वो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 3 kg और उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 1 ग्राम। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सब एपर्टस को यूज करेंगे जिसके डायमीटर भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो ये सब एपर्टस के मेजरमेंट देख लेते हैं। तो हमारी जो बेस प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस प्लेट का जो मोल्ड रहेगा उसकी थिकनेस 16 mm की रहेगी और उसकी जो हाइट है वो 130 से 140 mm तक रहेगी। जो हम प्लंजर यूज करने जा रहे हैं उसका डायमीटर हम यहाँ पे 115 mm तक रहेगा, जो 110 से 115 mm तक उसकी हाइट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेंडर मेजर हम करेंगे तो उसका डायमीटर रहेगा 115 mm डायमीटर और 180 mm की हेड रहेगी जिसमें हम एग्रीगेट को फिल करेंगे। और जो टेम्पिंग रोड, स्टील टेम्पिंग रोड का यूज करने वाले हैं, उस टेम्पिंग रोड का डायमीटर होगा 16 mm और उसकी हेड होगी 450 to 600 mm तक। ठीक है, तो ये तीनों चीज को हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है इंस्ट्रूमेंट का। तो जो कंप्रेसिंग मशीन है हमारा, जो एग्रीगेट वैल्यू प्रेसिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो मीटर्स है, स्विच है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना होगा और स्टील रोड है जो मैन्युअली इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं और ऑयल पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम अपना मोल्ड रखेंगे और मोल्ड और सिलेंडर में हमारा सैंपल रहेगा एग्रीगेट का, जो बेस प्लेट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उसको उस पर हम प्लंजर लगा के उसको हम प्रॉपर स्विच के साथ हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्रेशन के साथ हम प्रेशराइज करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सैंपल किस हिसाब से कलेक्ट करना है वो देख लीजिए। और सैंपल की क्वालिटी क्वांटिटी किस हिसाब से होनी चाहिए कि जो एग्रीगेट कंप्रेशन द टेस्ट सैंपल शैल बी ड्राइड इन ऑन ओवर एट द टेम्परेचर 100 to 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर एंड कूल्ड। जो भी हम एग्रीगेट सैंपल लेने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइट पर से फील्ड पर से हम कुछ एग्रीगेट ले लेंगे। ठीक है, और वो एग्रीगेट को हम 100 या 110 डिग्री तक हमारे ओवन में 4 घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद उसको बाहर निकाल के उसको ठंडा करेंगे। उसके बाद जो एग्रीगेट है उसको हम 12.5 mm की स्यू से पास करेंगे और उसको हम 10 mm की स्यू में रिटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो दो सीव लेने वाले हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, 12.5 mm की स्यू और 10 mm की स्यू। और उन दोनों में 12.5 mm से हम एग्रीगेट को पास करेंगे और 10 mm में हम रिटेन करेंगे। उसके बाद जो हमारा रिटेन मटेरियल है उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसको हम एक सिलेंडर में फिल करेंगे। सिलेंडर जो हमारा है वो जो हमारा मोल्ड है वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उसका 1/3 जो रहे उतना हम उसका एग्रीगेट लेंगे और उस एग्रीगेट को हम मोल्ड में रखेंगे और उस पर हम 25 स्ट्रोक देंगे टैपिंग रोड के साथ। ठीक है, दूसरी बार 1/3 उतना ही मटेरियल लेंगे फिर से और उसको हम मोल्ड में रखेंगे और फिर से 25 टाइम्स हम स्टॉक देंगे टैंपिंग रोड के साथ। और जहाँ तक हमारा एग्रीगेट की जो मोल्ड है वो फुल फिलअप ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे। So the net weight of the aggregate in the measure shall be determined and this weight of sample shall be used for the duplicate on the same material। तो यहाँ तक हम उस जो सैंपल है उसका हम वेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जितना भी मटेरियल हमारे पास रहेगा 10 mm स्यू में जो रिटर्न मटेरियल है और जो 12 mm स्यू से जो पास मटेरियल हो जाएगा उसका हम वेट कर लेंगे। ठीक है,
और उस वेट को हम इंडिकेट कर देंगे हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए दो टेबल दिए गए हैं। टेबल 1 है ऑब्जर्वेशन टेबल और टेबल 2 है रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया गया है, जैसे हमने डिस्कस किया कि वेट ऑफ ओवन ड्राइंग एग्रीगेट पासिंग 12.5 MMCU एंड रिटर्न ऑन 10 MMCU। तो जो हमने 12.5 mm और 10 MMCU में से जो एग्रीगेट को रिटेन किया है उसका हम वेट कर लेंगे, ठीक है, और उसका वेट को हम W1 नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम W1 का जो वेट रहेगा उसको रख देंगे। दूसरा सैंपल लेंगे, जो वेट ऑफ सैंपल है तो उसको अगर ये जो वेट है उसको हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है उसमें यहाँ पे मोड में फिलअप कर देंगे, ठीक है, और उसमें यहाँ पे अटैच करके हम उसको कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ उसको हम क्रशिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर के साथ ये वैल्यू क्रश होगी, एग्रीगेट क्रश होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम सैंपल को निकाल देंगे और फिर से उस सैंपल को हम 2.36 mm की स्यू में से पास करेंगे, ठीक है। और एक बार जो 2.36 mm की स्यू में से पास हो जाएगा सैंपल मटेरियल, उसका हम फिर से वेट करेंगे और ये सैंपल का जो वेट है वो यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। फिर से हम उस सैंपल को हमारे इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर से हम उसको कंप्रेशन देंगे और उसकी वैल्यू को उसको फिर हम एग्रीगेट को क्रश करेंगे। उसके बाद फिर से वो जो सैंपल रहेगा उसको हम 2.36 MMCU में से फिर से पास करेंगे और जब जितना भी मटेरियल रिटर्न होगा इस स्यू में उसको हम फिर से उसका वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि W2 है वो है 2.36 mm की स्यू में से जो पास हो जाता है उस मटेरियल का वेट है। बट ये जो है W3 वो है जो सैंपल 2.36 mm में रिटर्न हो जाता है थर्ड टाइम में, उसका है वेट, ठीक है। तो यहाँ पे W1, W2 और W3 ले लेंगे टेस्ट 1 के लिए। उसके बाद एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सिंपल फार्मूला है W2 अपॉन W1 इंटू 100%, ठीक है। तो यहाँ पे W2 का जो हमको वैल्यू मिले और W1 का जो वैल्यू मिला उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके साथ साथ हमें एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं कि W2 और W3 का जितना भी वेट है उसका वेट है वो W1 के इक्वल होना चाहिए। अगर वो सही है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर देंगे। तो ऐसे हमने टेस्ट 1 को एक बार किया, फिर से वही टेस्ट हम दोबारा करेंगे और उन दोनों की जो एवरेज वैल्यू होगी यहाँ पे जो एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू आएगी वो एवरेज वैल्यू को हम नोट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा। बट इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी जो रिकमेंडेशन है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से एज पर इंडियन रूल्स कांग्रेस और एज पर इंडियन स्टैंडर्ड मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सेपरेट कोर्स के लिए उसकी क्रशिंग वैल्यू की परसेंटेज है 45%। सब बेस प्लस बेस कोर्स के लिए उसकी वैल्यू हम 45% और बिटुमिनस बेस कोर्स और बियरिंग कोर्स है जो पेमेंट का अपर लेयर होता है उसके लिए जो क्रशिंग वैल्यू है वो जो रिकमेंडेड है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 30% है। रिजल्ट क्या आएगा हमारा कि द मीन ऑफ द क्रशिंग वैल्यू ऑब्टेन इन द टू टेस्ट इज रिपोर्टेड एज द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। तो यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में जो उसकी मीन वैल्यू हम मिलेगी हम उसको हम कंडक्ट करेंगे एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू के। तो ये जो हमारी वैल्यू फाइनल वैल्यू होगी एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू। तो एज पर दिस project we can see in general larger size of aggregate used in the test result in a higher aggregate crushing value, and the relationship between the aggregate size and the crushing value will however vary with the type of specimen tested। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कि जितने भी लार्जर साइज के हम एग्रीगेट लेंगे उतनी ज़्यादा क्रशिंग वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगी, रिजल्ट हमको क्रशिंग वैल्यू का ज़्यादा मिलेगा। और इस हिसाब से हमारा जो रिजल्ट मिला हमको हमने जहाँ से फीड में से एग्रीगेट लिया है उसका रिजल्ट के साथ हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हमने जो जितने ग्राम और जितने केजी का सैंपल लिया था उसके हिसाब से एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू हमें नहीं मिली, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर हमारा और ऑब्जर्वेशन टेबल और रिकमेंडेशन भी दिखा दिए, स्पेसिमेन का क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो भी दिखाया है और हमारा जो टेस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन कौन से एपर्टस यूज होने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वीडियो का
इस प्रैक्टिकल का प्रॉपर वीडियो, एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। As the first step of the procedure, we need to collect the sample from site. After the sampling is done, the sieving is done either manually or on a sieve shaker. For a standard test, aggregate passing 12.5 mm IS sieve and retained on 10 mm sieve is selected. Here we are using the manual way of sieving the aggregate. After the sieving is done, the aggregate passing 12.5 mm sieve and retained on 10 mm sieve is collected. We require about 6.5 kg of this sample for 2 test trials. After the aggregate is collected, it is weighed on a balance. Here we have about 3 kg of sample that can be used for 1 test trial. To prevent any error due to the presence of moisture, the aggregate is heated to about 100 degrees centigrade to 110 degrees centigrade and is then cooled to room temperature before testing. The cylindrical measure is then filled with the dried sample in 3 layers of approximately equal depths. After each layer, 25 tampings are given by the rounded edge of the tamping rod. The top surface of aggregates in the cylindrical measure is now leveled off using the tamping rod as a straight edge. The
total aggregate required to fill the cylindrical measure is weighed and the weight is recorded as W1. These aggregates are now transferred into the test cylinder with a base plate. This is done in a similar fashion as done above, placing the aggregates and giving 25 tampings to each layer. The top surface is now leveled and the plunger is inserted so that it rests on this level surface. The test cylinder with the sample and the plunger is then placed into the compression testing machine. The level of the cylinder is so adjusted that the top surface of the plunger just touches the loading surface. Now the machine is started and a load of 40 tons is applied at a rate of 4 tons per minute. The rate of loading can be adjusted using the knob provided. The load is now released by turning the second knob provided appropriately. The aggregates and the crushed material in the cylinder is transferred onto the sieve of 2.36 mm size. The sieving is now done and the material passing the sieve is collected. The fines thus collected from sieving is weighed and its weight is recorded as W2.